So today I will be just giving you what experiments we'll be doing in this semester. We have formulated some 8 to 9 experiments. As I have told you, we will be on 8051 and we will be on ARM7. And all experiments are simulation based. Okay. And we will be using Keel. This is a software or a package which is a compiler as well as simulator. Okay. So we can write down the code using assembly language programming, or else we can use C language. Okay. We can use either of the program. You can go with the C language or you can go with the assembly language programming. So we will not go with the C language, we will go with the assembly language using the same software, that is a Keel, and we will be trying to understand whether how we are going to write down the program, how we are going to run the program and save the program, and after you execute the program or you run the program, where you are going to see the output. Okay, as in the TASM we have done some of the experiments, that is arithmetic operations, largest and smallest, ascending and descending. The same experiments will also follow here, because we have to actually know how this 8051 is used for simulation purpose by using this Keel software. That is our main intention. Okay, then I will be just giving you that you need to download the executable file, and you have to have this software in your laptop. Okay, so those are using laptop and desktop computer, they can just store this, and those are using their cell phone, next time please you download this software in your laptop, so that whatever the experiments you will be doing, that thing you have to do on the laptop. Okay, जैसे हमने TASM में किया था, the same thing we will be doing here also. Okay, so what I will do first, I will share the screen, and I will be telling you the procedure, how do you download this skill software. Okay, so I will share the screen first. Yes. So how do you install Keel Microvision 7 version 4.74 or Keel Microvision 5.26? So I was talking about the Keel Microvision. Okay, Keel Microvision 5.26. Okay. So if I want to install this Keel Microvision 5.26, okay, we have this particular link. Okay. So I will be sharing this link in the chat box so that everyone can install this. Okay. I will be sharing this now. So if you find anywhere difficulty, you please ask me. Everyone check in the chat box. I will be sharing this link. This link you have to. This link you have to open, and I will show you the steps. I will show you the steps. Yes, I have shared the link in the chat box. Everyone open the link and follow the instructions how to download this. So once you open this, let me know. Sir, open. Everyone has opened it. Okay, Yes, sir. just a minute. Huh?
Okay, everyone open this. Say I'm opening this file now. Yes. Now this is a download product. We are opening the official site of the Keel, in which we will be using this particular products. Okay. Now, as I have told you, we'll be doing some products, some experiments on ARM based. That is ARM 7 ARM 7 microcontroller, and some will be based upon 8051. So for ARM, I will be using this particular MDK ARM, and for 8051, I will be using this. Okay. So you can just click on this C51. So once you open this C51, are you able to see this now on the screen? सबने ओपन करने के बाद ये आ रहा है सबको? नो सर। नो सर, कॉन्टैक्ट नो सर वो और इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर और नेम एंड सर ऑल। वो पर्सनल डिटेल मांग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने जब ओपन किया तो ये वाला जो पेज ओपन हो रहा है ये नहीं हो रहा है आपके इसमें? नो सर। नहीं नो सर। नहीं सर। Okay, okay. Then do one thing. I will copy this other one. ये सेकेंड लिंक ओपन करके देखो, डायरेक्ट ये पेज आता है क्या जो मैंने अभी ओपन किया, ये वाला? नो सर, फिर वही वाला नहीं पेज आ सर, रहा है same उसको है। भी। सर सर सेम वो पेज। पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। ओके, डू वन थिंग, वॉट एवर, फिर एक काम करो, everyone please open your mail. I will be sending you the drive, जहाँ पे आप डायरेक्टली uv4.exe फाइल आप डायरेक्टली ओपन डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन, आफ्टर डाउनलोडिंग यू कैन ओपन दिस. सर वो पेज पे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने जो पेज दिखाया वही ओपन होता है, बट वी नीड टू फिल द इंफॉर्मेशन इन दैट, आफ्टर दैट ओनली। अच्छा एक मिनट, ये जो है ऐसा वाला पेज आ रहा है? हाँ सर, आ गया वैसा पेज। यस सर। हाँ फिर ठीक है. ओके, देन वी विल वेट. ओके, एवरीवन हैज रीच्ड टू दिस पेज नाउ. आई वांट एवरीवन, अगर किसी को नहीं आ रहा तो पूछो मुझे. एवरीवन शुड रीच टू दिस पेज. C51 development tools for classic and extended 8051 microcontrollers, version 9.60A. Okay, and this is the file which I was talking about, executable file. Everyone has got this page. Okay, I'm assuming that everyone has opened this page now. Now do one thing, right click on this, right click on this. ये जो फाइल है यहाँ पे लिखा भी है ऑलरेडी, राइट क्लिक ऑन C51 version 960A.exe and save it on your computer. So when you are opening this, see here, right click करो and save link as. So you can save link as in the C drive, or you can save on the desktop computer.
यहाँ तक आए? someone of you please acknowledge. Yes, sir. हाँ, ये होने के बाद वो जो आपने सेव किया है फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको डबल क्लिक करके ओपन करो. ओपन हुई है? सर एक बार वापस बताइए. मैंने बताया था कि आप जब ये फाइल को ऊपर राइट क्लिक करते हो, ये फाइल को ये फाइल को जब ओपन कर ये राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है सेव लिंक एज. So you can save this link as in your C drive, or you can save in your desktop. So once you save this, you will be able to see this type of icon. ये देखो ये icon C51 version 960A. ये आने के बाद इसको डबल क्लिक करो. डबल क्लिक होने के बाद, as this is an executable file, it will ask you for setup. डबल क्लिक आने के बाद now sometimes it may give you this message. अभी जो ऊपर अभी आने वाला है. See here now. You have to just run this file, and once you run this file, all of you see here. ये देखो डेस्कटॉप पे क्या आ रहा है, कील माइक्रो विजन 5. ये आइकॉन दिख रहा है, ये आपके डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली होना चाहिए आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ दिस कील. यहाँ तक आए इसका मतलब यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल कील माइक्रो विजन 5. ओके, और जिनका नहीं आया, आई एम शोइंग यू द स्टेप्स. अब ये क्या बोल रहा है, गेट एप्स फ्रॉम द स्टोर. मेरे जो माइक्रोसॉफ्ट उसमें ये नहीं है, तो अदरवाइज इंस्टॉल, यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे करो, एंड देन प्रोसीड फर्दर. यहाँ तक कितने जन पहुंचे? Yes, sir. यहाँ तक हाँ. हाँ सर, इंस्टॉल हो गया. सर ते डायरेक्ट सेटअपचं विचारते, तसं चालेल का? हा चालेल. सेटअप करून तुम्ही इन्स्टॉल करा, आणि इन्स्टॉल झाल्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली तुमच्या डेस्कटॉपवर येऊन जाईल. ओके सर. आणि तुमच्या डेस्कटॉपवर आल्यानंतर त्याचा आयकॉन असा दिसतो, हे पहा, कील मायक्रो विजन 5. सर ते सेटअप पासून परत सांगता का कोणतं आयकॉन येतं ते सी ड्राईव्ह मध्ये? मनीष एक काम कर, तुझी स्क्रीन शेअर कर, म्हणजे मी तुझ्या स्क्रीनवर दाखवतो मग. चालेल, ठीक आहे. एक सेकंड. हा, शेअर युअर स्क्रीन. एक मिनिट, मला स्टॉप करू दे माझं स्क्रीन. हा, आता शेअर कर. So Manish is sharing his screen. You will check here कि वो कहाँ तक पहुंचा है. हाँ मनीष, हाँ तुझं कुठं आलंय? ठीक आहे, सेटअप तू सी मध्ये सेव्ह केला. यू हॅव सेव्ड इन सी ड्राईव्ह. हाँ मनीष, हैव यू सेव्ड इन द सी ड्राईव्ह द लिंक? हा सर, माझे सेटअप ई मध्ये आहेत, मी सेटअप तिथे केलेला आहे सेव्ह. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. उसको डबल क्लिक करके ओपन करो. हा वालाच ना? हाँ हाँ. नेक्स्ट. नहीं, हा दूसरा सेटअप है, NSS समथिंग. मग कोणता सेटअप आहे सर याच्यात? एक मिनट. डेट के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना. हाँ, डेट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो. ये नहीं है. नहीं मनीष ये नहीं है. एक काम करो, डेट पे जाओ, डेट मॉडिफाइड पे. नहीं, हाँ. ये PDF है. ये नहीं गूगल क्रोम का हुआ है. ये HTML का है, वो नहीं. साइट पे ना नीचे सेटअप है, उसको डाउनलोड कर मनीष. नहीं, उससे अच्छा मनीष डेट मॉडिफाइड पे जाओ. ये देखो सर. वो से नहीं, सेटअप पे क्लिक करो, नीचे है ना. हाँ, ब्लू में.
ये वाला? हाँ क्लिक कर, डाउनलोड कर, नहीं डाउनलोड कर, सीधा सिर्फ क्लिक कर। हम्म। सर सेटअप पे वापस इंफॉर्मेशन मांगता है क्या वो? नहीं बाद में नहीं मानेगा। हाँ फिर से मांगता है सर सेटअप पे भी। हाँ ठीक है, ये आ गया। ये तुम्हारे अभी CI ड्राइव में सेव करो। हाँ हम्म। हाँ, ये देखो अभी मनीष जैसा कर रहा है, अभी देखो उसकी वहाँ पे सेटअप वो exe फाइल सेव हो गई। मनीष अभी ई में जाके उसको ओपन करो। सर डाउनलोड होते हैं। अच्छा होता है, ठीक है। एवरीवन प्लीज चेक, और जिनका इंस्टॉल हुआ है वेट फॉर द अदर्स। सर ते इन्स्टॉल झाल्यावरती परत गुगल वरती येते. गूगल वर येते. हो, नाही. C51 रिलीज नोट्स म्हणून असा टॅब ओपन होतोय. हाँ ठीक है ना। यस हाँ सर, तो ऐसे ही आ रहा है। हाँ ठीक है, अगर वो आता है ना, इसका मतलब आपका जो भी अभी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे आ गया होगा। लेकिन आफ्टर यू इंस्टॉल ना, whenever you run this executable file, then you will see that software is installed, and automatically after following the steps you will get an icon on your desktop. मनीष केलं का? हाँ सर होतं आहे, 2च मिनिटं फक्त. हाँ ठीक है, जिनका नहीं हुआ है एटलीस्ट देखो। See on the screen which Manish has shared. Now he has installed that .exe file, और ये देखो यहाँ पे भी लिखा है PDF फाइल्स में भी ओपन विद एक्रोबैट रीडर। जो लोग मुझे बता रहे थे ना, तो PDF फाइल भी ओपन हो जाती है PDF में। ओके सर, झालं इन्स्टॉल. हाँ अभी ओपन करो उसको। हे वाला? कहाँ पे मुझे बताओ, रुको कहाँ पे? हे वालाच ना? C51V9696. हाँ यस, हाँ ओपन करो। होता है सर ओपन. होता है ना? हाँ हम्म. हाँ यस, देखो रुको यहाँ तक देखो। यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो, वेलकम टू कील माइक्रोविजन रिलीज डेट जो है उसका, द सेटअप प्रोग्राम कील माइक्रोविजन 9.60A। ये आने के बाद यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट। मनीष क्लिक ऑन नेक्स्ट। हाँ, आई एग्री ऑल द टर्म्स ऑफ द प्रोसीडिंग, यस, देन गो टू नेक्स्ट। मुझे कहाँ पे सेव करना है? सी ड्राइव में। ओके तो वो वही रहेगा। नेक्स्ट, यस, राइट डाउन योर नेम, your last name, your surname, your college name, company's name, and your email ID. Now this is for if any is there any update available, they will mail you. Write down Vivekananda Education Society's Institute of Technology. हाँ ठीक है चलेगा, visit। हाँ and email आपका डाल दो। I hope सबके लिए ये स्टेप आया होगा। ओके Yes, sir. हाँ, now next। now this is going to install now. Now once this is successfully installed, then you will be able to see that icon in your desktop. Okay, और ये सब जो सॉफ्टवेयर है इसके रिलेटेड फाइल्स है, ये सब कहाँ स्टोर हो रही है? सी ड्राइव में। ओके, एवरीथिंग इज गेटिंग इंस्टॉल्ड इन सी ड्राइव। हाँ फिनिश। Now open, now Manish you can show your desktop now. This is a release note, you can keep as it is. This is a release note. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है प्रोग्राम के, पेरिफेरल उसके डेटाबेस है, उसका डिवाइस का इंफॉर्मेशन है। So this thing you can just read afterwards. Okay, Manish you can minimize this and just show me your desktop. See here. Yes, Keen Microvision 5, Keen Microvision 5। किसी को डाउट है तो पूछो, सबको ये मिला यहाँ तक? यस सर। हाँ, अभी सबके स्क्रीन पे आने के बाद उसको डबल क्लिक करो।
हाँ ओके, हाँ बस अभी, हाँ बस ऐसा लाओ, अभी रुको। मनीष, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन नाउ। यस, yes, now we have installed that Keel Microvision 6, that is actually version 5. Okay, now we will be seeing the steps. To show you the steps, I will be sharing one more PDF file. Yes, ये हम जो कर रहे थे ना, yes, this is the one. How to install Microvision 7 version 4.7 या फिर Microvision 5.6. 4.7 के लिए ये था और 5.26 के लिए ये था, इसलिए आपके जो आइकॉन है उस पे लिखा है माइक्रोविजन, कील माइक्रोविजन 5. दैट मीन्स वी आर यूजिंग वर्जन 5. ओके, ये सब होने के बाद, यस, यहाँ पे भी वही पूछ रहा था, आफ्टर यू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके, यहाँ पे मुझे एक बात आपको बतानी थी. यस, आपने इसको क्लिक किया था क्योंकि मुझे 8051 का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए था. सो फॉर 8051 मैंने इसको क्लिक किया था. सिमिलरली ARM7 जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे और उसके प्रोग्राम रिलेटेड प्रोग्राम जब हम रन करेंगे, उसके लिए हमको ये लगने वाला है. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ARM बेस्ड कोड इसको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, एंड फॉर 8051 बेस्ड कोड हमको इसको इंस्टॉल करना है. तो अभी फिलहाल तो हम 8051 कर रहे हैं, इसलिए हमको यही करना है, ये हम बाद में करेंगे. ओके, देखो यहाँ पे वही पूछ रहा था कि ये वाला एक्सटेंशन टू डाउनलोड CS51 विच इज डेवलपमेंट टूल फॉर क्लासिक एंड एक्सटेंडेड 8051 माइक्रो कंट्रोलर. क्लासिक एंड एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि जो कुछ पुराने आपके माइक्रो कंट्रोलर्स भी हम इस पे एग्जीक्यूट रन कर सकते हैं, और कोई भी लेटेस्ट वाले माइक्रो कंट्रोलर जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उसको भी हम इस पे रन कर सकते हैं. ओके, सो आपने यही फाइल को उसको डाउनलोड किया, एग्जीक्यूटेबल फाइल. ओके, इसके बाद नाउ आपने उसको रन किया है एंड यू हैव फॉलोड द स्टेप्स. ओके, एंड यू हैव सक्सेसफुली installed that software, that is Keel. Okay, now with this understanding, now we will go to the steps now कि हमको फाइल अभी कैसा लिखना है. So there is a basic tutorial for this Keel software. Okay, तो ये मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. Maximum to maximum information which I am having, I am going to share that. Okay, I am going to share that. So I was talking about this one. So we will see the steps now. Yes, all of you pay attention now. मेरे जो स्क्रीन पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखो. आपने जो कील ओपन करके रखा है उसको वैसे रहने दो. ओके, एंड जस्ट अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज अ बिल की, दिस इज अ ओपन योर कील फ्रॉम द स्टार्ट मेनू. ओके, और व्हेनेवर यू आर ओपनिंग, डबल क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो देखने को मिलेगा. यू विल बी एबल टू सी दिस विंडो. So this window comprises of 3 windows or 3 parts. This is called as a tree menu. This is called as a build window, and this is called as a editor window. जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं. So this is a editor window. This portion is editor window. This is a tree menu, and this is a build window. Okay, this is a build window. So पहला step क्या? Open Keel from the start menu. The figure below shows the basic names of the windows referred in this document. तो ये 3 विंडो मैं आपको जो बताया वाला है. Then comes the third one, select. हाँ, ये अभी स्टेप्स क्या है, यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है. सिलेक्ट न्यू माइक्रोविजन आपके जो प्रोजेक्ट में. ओके, सिलेक्ट न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट नेम. ओके, so I think I can simultaneously show you, or else if you want you can do along with me. Okay, so simultaneously हम स्टेप्स भी करेंगे. तो पहले वाला जो यहाँ पे स्टेप था, ओपन कील फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, यानी हमने जो डबल क्लिक करके उसको ओपन किया है, वो डबल क्लिक होने के बाद ये विंडो आया है. ये विंडो आने के बाद एक्चुअली अभी हमको स्टेप्स देखना है. नाम क्या है यहाँ पे? स्टार्टिंग अ न्यू असेंबलर प्रोजेक्ट. स्टार्टिंग अ न्यू असेंबलर प्रोजेक्ट. सो हाउ डू यू start your assembler, or how do you give your name to the assembler or your project? Okay,
the first thing is that select new microvision project from the project menu. Okay, so simultaneously I am doing on my screen also. Yes, ये देखो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, डबल क्लिक. Once you double click, there will appear the window which are having three parts. That is the tree menu, build window, and the editor window. Okay, now this is the window. Now before I start, I want everyone to do one thing. Please look what I am doing. I will explain you. Now see here, the first thing is go to the project. I'm starting with the new assembler project. Okay, go to the project. In the project, you can see there is a new microvision project. So you have to click on this new microvision project. So this is my new microvision project. So once you open this, once you open this, now as you will be doing many experiments, that is 4 to 5 experiments using this Keel microvision, that is on 8051 base. Okay, so what I am suggesting you that you have one folder, each folder for each experiment. Again, I am repeating. You should have individual folder for individual experiment. और उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि हर एक फोल्डर में हर एक एक्सपेरिमेंट का फाइल स्टोर होना चाहिए. सपोज मुझे एडिशन करना है तो एडिशन की फाइल में जो बनाऊंगा वो एडिशन के फोल्डर में ही रहनी चाहिए. सब्ट्रैक्शन का जो बनाऊंगा वो सब्ट्रैक्शन के फोल्डर में ही रहना चाहिए. ओके, तो फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग. Okay, you can do one thing. Now here, if you are writing down the file name, suppose I want to add two numbers, so I am writing down ADD. Now this file name can be saved as add.asm. So this file will be saved at with the extension of .asm. Okay. Now save as type. नीचे में आप जब देखोगे तो आपका don't write down .asm. एक काम करो, only add लिखना. हम पहला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एडिशन का करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर्स. सो द फाइल का नाम है ऐड और उसका इट विल बी सेव्ड एज व्हाट, इट विल बी सेव्ड एज माइक्रोविजन प्रोजेक्ट. इट विल बी सेव्ड एज माइक्रोविजन प्रोजेक्ट. ओके, एंड दिस फाइल विल बी सेव्ड वेयर इन दिस. बट जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एवरी फोल्डर there should be for every file name there should be separate folder. So you can open new folder. You can open new folder and you can write down their name. Okay, you can just write down addition. You can write down just addition. हम addition के जो फोल्डर में, ये addition के फोल्डर में हम उसको सेव करने वाले. तो ये देखो, otherwise I can do one thing. हाँ, एक मिनट. सी ड्राइव में ये जो कील वर्जन है 351, उसमें एग्जांपल्स है, उसमें एक हेलो फाइल है और हेलो फाइल में एक फोल्डर है. हेलो फाइल में एक फोल्डर है. अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो यू कैन डू वन थिंग, यू विल नॉट गो टू द एग्जांपल्स, आप डायरेक्टली यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एंटर करो. ओके, 351. यहाँ पे आने के बाद यू कैन हैव सेपरेट फोल्डर, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे आप नाम दे लगे तो एडिशन, ADDITION एडिशन. और ये फोल्डर में आपका फाइल रहेगा ये वाला माइक्रोविजन प्रोजेक्ट का. तो आपका वो फाइल जो है एडिशन ये वाला, अब वहाँ पे यस, नाउ हियर विल हैव दिस ऐड. ओके, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज स्टॉप मी देयर, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो प्रॉपर समझो. ओके, तो आपने क्या किया है, 351 में एडिशन का एक फोल्डर बनाया और वो फोल्डर में आपका ऐड ये फाइल है जिसका एक्सटेंशन है माइक्रोविजन प्रोजेक्ट. ओके,
ये होने के बाद उसको सेव कर दो। यस, हैव यू रीच टू दिस पर्टिकुलर विंडो नाउ? यस Yes. सर। Yes, sir. हाँ हाँ, अभी ये विंडो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ये विंडो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, देखो, सिलेक्ट डिवाइस फॉर टारगेट 1। ओके, अभी हमको डिवाइस सिलेक्ट करना है। ओके, वी हैव टू सिलेक्ट द डिवाइस। हम जो 8051 यूज करेंगे ना, वो एक्चुअली उसका मैन्युफैक्चर, देयर आर मेनी मैन्युफैक्चरर्स लाइक फिलिप्स, इंटेल, डल्लास and Atmega. So actually I am interested in Atmega. Okay, so I am searching for that particular microcontroller 809C51, which is Atmega. Okay, so if you see here, wait. Simultaneously, please take in your also in your folder whether we are getting this, whether are you finding this 889C51 Atmega 89C51, या फिर हम यहाँ पे नाम डाल के देखते 89C51. Yes, microchip. It is available in microchip 89C51. Yes, it is here, microchip 89C51. उसको क्लिक करना है। यहाँ तक पहुंचे सब जन? यस हाँ, अभी जब मैंने 89C51 चूज किया है, अभी राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन मिला है। अगर मैं ये करूंगा तो इसका डिस्क्रिप्शन राइट में मिलेगा, ये करूंगा इसका डिस्क्रिप्शन राइट में मिलेगा। मैंने 89C51 माइक्रोचिप 89C51, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? 8051 बेस्ड फुल्ली स्टैटिक 24 मेगाहर्ट्ज CMOS कंट्रोलर विद 32 IO लाइन। अभी आपने जब 8051 के जो फीचर्स पढ़े थे, उसमें आपने पढ़े थे कि 32 IO लाइन है, 4 पोर्ट विथ ईच पोर्ट एज 8 बिट, so 8 ports are 32. Then you have 2 timer counters, then there are 6 interrupts. Now ये जो 89C51 है, this is a one which are having 6 interrupts, 2 priority levels. हमने जो किया था वो 5 interrupts थे, 3 एक्सटर्नल थे, 2 इंटरनल थे। इसमें UART, हमारे इसमें भी हमने जो पढ़े थे वो UART का था। This is a 3-level programming memory lock, 4 kilobytes of flash memory, 4K ROM, तो ये भी 4K ROM है, और 128 bytes of on chip RAM, 128 bytes of on chip RAM. Okay, तो हमको यही सिलेक्ट करना है। Once you have selected this, then OK करना है। OK करने के बाद ये सब आता है, copy startup.py to project folder and add file to project, yes करना है। यस करने के बाद ये देखो लेफ्ट में क्या आया, ये जो प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है ऐड, और टारगेट जनरेट हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम ऐड, टारगेट जनरेट हुआ है, एंड दिस इज अ सोर्स ग्रुप 1। ओके, एंड startup.a51, आपने जब ओके किया ना तो ये फाइल यहाँ पे अटैच हुई है। तो दिस इज अ टेम्परेरी फाइल विच इज गेटिंग अटैच। ओके, अब ये जो अपन ने अब तक किया है, ये हम अभी इसमें देखेंगे। यस, यहाँ पे हमने क्या अब तक जो किया है, हमने क्या किया था, सिलेक्ट योर माइक्रोविजन प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट मेनू, हमने न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट किया था। ये होने के बाद 4th नंबर नेम द प्रोजेक्ट, ये इनका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो टॉगल था, इसलिए इन्होंने टॉगल का नाम लिखा है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम था मुझे एडिशन करना है, इसलिए मैंने ऐड लिखा है। ओके, इसलिए मैंने ऐड लिखा है। ओके, सो क्लिक ऑन द सेव बटन। ये देखो, यानी यहाँ पे क्या है, फाइल का नाम टॉगल, मैंने फाइल का नाम टॉगल किया है।
प्रोजेक्ट का नाम इज डॉट माइक्रो वर्जन 2, अपना माइक्रो वर्जन प्रोजेक्ट था, सो दैट इज ओके, दैट इज फाइन। देन आपने सेव किया, सेव बटन हो गया। सेव होने के बाद ये विंडो आया, ये विंडो आया, द डिवाइस विंडो विल बी डिस्प्लेड। ये डिवाइस विंडो है। Select the part you will be using to test with. For now we will be using Dallas Semiconductor. इन्होंने ये यूज करना था इसलिए इन्होंने डल्लास का यूज किया है। हमें AT89C51 यूज करना था माइक्रोचिप का, तो हमने वो सिलेक्ट किया है। ये होने के बाद हमने स्क्रॉल डाउन एंड सिलेक्ट, ये इन्होंने ये सिलेक्ट किया, बाद में ओके किया है। ओके आने के बाद फिर ये विंडो आया है। हाँ, सिलेक्ट करने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन आया था। ये होने के बाद हमने ओके किया है। ये होने के बाद ये पूछता है कि whether you have to add the startup file. Here they have written no, but we should add them. So I have written yes, add किया हमने। यहाँ पे no किया है उन्होंने, but it's better you add it. If it gives some problem, we can, हम डायरेक्टली वहां पे जाके भी हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, वो होने के बाद ये जो सब स्टेप्स है ना, ये जो हमने किया था, these are the steps for starting a new assembler project. Please remember, मैं फिर से बता रहा हूँ, बेसिक कील ट्यूटोरियल में हमने देखा था उसको ओपन कैसे करना है, और बाद में हमको स्टार्टिंग अ न्यू असेंबलर प्रोजेक्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग अ न्यू असेंबलर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम माइक्रोविजन प्रोजेक्ट। ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा जब तक आप वो स्टार्टअप फाइल ऐड नहीं करते हो प्रोजेक्ट को, टारगेट को। तो ये मेरा यहाँ तक जाएगा, सॉरी, हाँ, ये मेरा यहाँ तक जाएगा। हमने जब ऐड की तो वो प्रोजेक्ट फाइल वहाँ पे ऐड होगी। बाद में क्रिएटिंग अ सोर्स फाइल, नाउ मुझे क्रिएटिंग अ सोर्स फाइल करना है। नाउ हाउ डू क्रिएट अ सोर्स फाइल? क्लिक फाइल मेनू एंड सिलेक्ट न्यू। अभी फाइल में जाना है और न्यू को क्लिक करना है। ओके, अगेन आई एम गोइंग बैक। यहाँ तक हो गया? एवरीवन हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट नाउ? ये सब एक्सपांड करके देखो, प्रोजेक्ट ऐड, टारगेट 1, सोर्स ग्रुप 1, स्टार्टअप डॉट A51, यहाँ तक सबका आ गया? यस सर। अभी हाँ, ओके, नाउ वी आर गोइंग, नाउ एक्चुअली सोर्स फाइल मुझे ऐड करना है। सोर्स फाइल मींस द एक्चुअल फाइल where you will be writing down the file and you will be storing that file at .asf. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, न्यू फाइल, ये देखो न्यू फाइल, या फिर ये फाइल पे जाओ और यहाँ पे न्यू आता है, तो गो हियर न्यू फाइल। जैसे आप ये न्यू फाइल करते हो, ये देखो एडिटर विंडो आ जाता है। ये एडिटर विंडो है जहाँ पे एक्चुअली हमको कोड लिखना है, ओके ओके। नाउ you will be writing down the code for addition of any two numbers. ओके, अब तक हमने 8051 का प्रोग्रामिंग नहीं किया है, हमने इंस्ट्रक्शन सेट्स नहीं किए, हमने एड्रेसिंग मोड नहीं किया है। Even though I have told you most of the parts from 8086 are set, but there also we should understand the instruction set. ओके, तो ये पार्ट तक हम रुकते हैं। ओके, लेकिन आई विल बी शोइंग कि इसके आगे हमको और क्या क्या करना है। Now this is the editor window where you will be writing down the program. Okay. अब इसके पहले I need to show you this one. Yes. ये देखो, go to the file menu and select new. वो करने के बाद a new window will appear, open in the key ID integrated development environment. ये देखो ये आ गया जो अभी मैंने आपको दिखा। उसके बाद what will happen? Copy the example of the write into the new window. This file will toggle port 1 and port 2. ये एक छोटा इंस्ट्रक्शन ये है, प्रोग्राम है जहाँ पे टॉगलिंग होती है पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बीच में। ओके, तो आई वांट टू से दैट द प्रोग्राम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपको वो विंडो में लिखना है। कौन सी विंडो में लिखना है? ये विंडो में। सपोज हमने प्रोग्राम लिख लिया, वो होने के बाद नाउ टुडे आई वोंट बी टेकिंग द प्रोग्राम एंड एवरीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू द फील ऑफ दिस। प्रोग्राम लिखने के बाद मुझे वो सेव करना है। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड सिलेक्ट सेव एज। फिर से देखो प्रोग्राम लिखा उसने, ये जो प्रोग्राम है वो यही प्रोग्राम है जो आप डायरेक्टली कहीं तो भी नोटपैड पे लिखो और कॉपी पेस्ट करो, या फिर आप ये विंडो में ही लिखो। यहाँ पे लिखने के बाद आपको सेव करना है, तो यू हैव टू गो टू द फाइल अगेन, सेव एज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, बाय व्हाट फाइल नेम यू आर गोइंग टू सेव। नेम द फाइल नेम एज toggle.a51। ओके, तो हम जब यहाँ पे फाइल सेव करेंगे तो हम यहाँ पे फाइल का नाम
डॉट एएसएम बोल के सेव करेंगे। ओके, तो हमारी सोर्स फाइल जो भी रहेगी वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, तो डॉट एएसएम यूज एक्सटेंशन। ओके, ए डॉट ए फर्स्ट वन ये नहीं, ये ऐसे बोल के हम सेव नहीं करेंगे, डॉट एएसएम बोल के हम सेव करेंगे। वो होने के बाद वी विल सेव, सो क्लिक द सेव बटन, हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये होने के बाद हियर चेंज फाइल टाइप टू डॉट एएसएम सोर्स फाइल। ओके, नाउ हियर मैंने जो बताया था ना, तो उन्होंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, तो मैंने पहले ही बताया था कि हमको सेव करना है डॉट एएसएम। ओके, so that file will be saved, and once that file will be saved, expand the source group one। अभी ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ना आपको, लेट मी, हाँ, यस दिस वन, ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ना सोर्स ग्रुप वन, यहाँ पे आपका टॉगल फाइल ऑटोमेटिकली अटैच होगी। योर फाइल विल बी अटैच हियर, योर फाइल विल बी अटैच हियर। ओके, ये अगर नहीं आता तो इसका मतलब समवेयर यू हैव डन अ रॉन्ग, so that when you add that file, source group one में आपका वो फाइल अटैच हो जाता है with the extension of .asm। okay, so expand the group one in the tree menu to ensure that the file was added to the project। आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें वो फाइल सोर्स फाइल अटैच होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हाँ, दिस इज द लास्ट, दिस इज द लास्ट। ओके, ये जो बाकी के स्टेप है दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये स्टेप इसलिए है कि हम ये कील प्रोग्राम यूज करके हम जो भी कोड लिखते हैं वो हम 8051 आईसी में बर्न भी कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, whatever the code you are writing down, that code can be burned into 8051 microcontroller IC by using this keel program। So for that your ASM file should be converted into hex file। इसलिए यहाँ पे क्या नाम दिया है, creating hex file, creating hex file। तो अभी तो हमको ये नहीं करना है, और ये सेमिस्टर में हमको ये हेक्स फाइल क्रिएट भी नहीं करना है, तो नीचे वाला ये पोर्शन हम निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, हमको सिर्फ यहाँ तक जाना है। तो क्या ना से माय अल्टीमेट गोल इज दैट योर डॉट एएसएम फाइल विच इज अ सोर्स फाइल शुड बी अटैच्ड और एडेड टू द सोर्स ग्रुप वन, और प्रॉपरली अगर अटैच हुआ देन यस योर फाइल इज प्रॉपरली अटैच। उसके बाद आता है हाउ डू यू डिबग द प्रोग्राम एंड हाउ डू यू रन द प्रोग्राम। यहाँ पे भी हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, या फिर हम एट अ स्ट्रेच एक ही बार हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, so this is about the key programming and these are the steps। आज as the time there is a time constraint, I won't be taking the program directly क्योंकि हमने अब तक कुछ भी नहीं किया है। हम कील हमने सिर्फ आज देखा है कि इंट्रोडक्शन टू द कील। इसके रिलेटेड आई विल बी शेयरिंग यू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू द ट्यूटोरियल पेज also I'm going to send you so that you can just explore what are the programs। और एक बात है, in the YouTube also you can see some of the programs which can be run by using the keel programming। okay, मैंने पहले बताया था कि कील सॉफ्टवेयर can be used for writing down assembly language program as well as for writing down C language। अगर हमको C में सेव करना है तो you have to write down the program in C and you have to save as .c। लेकिन यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे और सेव करते समय हम सेव करेंगे .asm। ओके, सो रिमेंबर can be used with C as well as for as well as can be used as a assembly language programming। okay, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? So I'll be sharing this, you can see my video recording also। okay, and somewhere if you are not understanding then just let me know next time, as well as you see some programming how they are run in the key software, so that when next time when we will meet I will be showing you directly the addition, subtraction, multiplication and division। before I end, let me show you which are the experiments which we are going to see, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आएगी कि हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं।
Yes, this is also one page I'm having. This is in Word, that how to use keys. How to use keys. This page also I will save. I will share with you. जो मैंने अभी तक लिया वही है. Microvision project open करो. Then you write down my project. Then you save the file with C. Microvision project file में save करो. Then AT89C51 आपको चाहिए, वो उसको select करो. Okay, 89C51. Then you use a startup.a51, that is save as this. After that, go to the menu, new code, then see assembly or C language. मैं जो आपको बता रहा था. Okay, and write down the code. See, you have to save the code as .asf. Save the file. Once it is saved, this is the after writing down the program, save it as .asf with some file name. After that, once that is added, source code में वो फाइल आपकी अटैच होनी चाहिए. ओके, तो सोर्स कोड में अगर अटैच नहीं है तो उसको कैसा करना है, सोर्स ग्रुप में जाना है, वहां पे राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद ये आएगा. ये आने के बाद आपको ऐड फाइल टू ग्रुप सोर्स ग्रुप 1 ये करना, इसको क्लिक करना है. फिर आपका जो code.asm है वहां पे जाके उसको लिंक हो जाएगा. तो आपका ये जो सोर्स ग्रुप है ना, इसमें दो फाइल्स रहेंगी, एक startup.a51 वाली और दूसरा रहेगा code.asm वाला. कोड में जाके वो जो ASM फाइल है उसको सेव करके देखो ऐड करना है. अगर ऐड नहीं हुई तो ये करना है, ऐड करना है, क्लोज करना है. वो होने के बाद देखो टारगेट में ये देखो ये दो फाइल सोर्स ग्रुप में आपका स्टार्टअप फाइल .a51 भी है और ये भी है. ओके, देन हाँ, ये बाकी की चीज हेक्स के लिए जो बोला था ना, हाउ टू क्रिएट द हेक्स फाइल. बिकॉज जब हम बर्न करते हैं ना 8051 में, हमको हेक्स फाइल चाहिए, हमको .asm फाइल नहीं चाहिए. तो हमारा काम सिर्फ यहाँ तक है. कहाँ तक है ये देखो यहाँ तक. So this thing also I will share with you. Okay. Now I will not waste the time and I will just show you the experiments which we are going to see. Okay, this one. Today you can do one thing. The first experiment, let it be the study of keel. Okay, the first experiment, it is not an experiment, it is a study experiment in which you will be writing down everything about keel software. Yes, this is the one which I have taken from 1920. Okay, so see here, arithmetic operations हमको देखना है जिसमें हम addition, subtraction, multiplication, division करेंगे. Second experiment is divided into two, जहाँ पे हमको largest, smallest और ascending descending करेंगे. Now this is a tentative list. Okay, this is a tentative list. जैसे मैंने बताया था कि हम हार्डवेयर बेस नहीं करेंगे तो इसमें हार्डवेयर भी है, तो इसमें से हार्डवेयर मुझे निकालने हैं. So I can treat this as 1, this one as second, this one as third, this one is fourth, this one is fifth. और ये जो दिखा इंटरफेसिंग ये हार्डवेयर पार्ट, ये जो दिखा इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर ये भी हार्डवेयर पार्ट, ये जो है ये भी हार्डवेयर पार्ट है. तो 1 2 3 ये हार्डवेयर है, तो हम ये नहीं लेने वाले. Software based as far as 8051 is concerned, arithmetic operation, addition, subtraction, multiplication, division, then finding the largest and smallest number, then sorting the number in descending and ascending order, then block transfer and block exchange. इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल रैम में हम कैसे ब्लॉक ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं वो हमको देखना है. Now everything we have studied in 806, I mean to say that the logic is important. Once logic is clear, then we can write down the program in 8051 or you can write down in 808. Okay, so ये 1 2 3 4 करने के बाद the remaining 4 to 5 experiments will be based upon ARM7. तो उसमें भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉर ARM7. और हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेंगे सिमुलेशन बेस्ड अगेन ऑन ARM7. ओके, इसमें और एक बात है, जैसे आपने अभी इंस्टॉल किया है कील, वेट अ मिनट, यस, आपने जैसे ये यूज किया है कील माइक्रोविजन 5. नाउ दिस इज द माइक्रोविजन 5 ओनली फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर. वैसे ही हमको ARM7 के लिए भी करना है. ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है और असेंबलर और कंपाइलर है ये सिर्फ 8051 को सपोर्ट करता है.
ARM7 को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमको दूसरा वाला भी इंस्टॉल करना है। ओके, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। 4 to 5 एक्सपेरिमेंट जब 8051 पे हो जाएंगे और जब ARM7 की बारी आएगी तब हम एक्चुअली ARM7 यूज वो इंस्टॉल करेंगे एंड देन देयर विल रन द प्रोग्राम बेस्ड अपॉन ARM. Yes, any questions, any doubt you have, please ask. Do you have any questions, any doubt? So your homework is you will be writing down the first as a study experiment in which you will be taking the reference from the material which I will be sharing with you. Along with that, you can see these are the study experiment. First is a study experiment, so you can write down in your own words. आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब लिखो. I don't want you to take the copy print out. Write down in your own words for your better understanding. Okay. So reference you can take my material as well as you can also Google search and see some information if you are getting there also. Okay. So this is about the introduction of Keel and programming of Technilia. In the next lecture, in the next week, I will be starting with the arithmetic, addition, subtraction, multiplication, and division. Okay. Manish, you please take the attendance. परमेश्वरी मैम है. अच्छा, परमेश्वरी मैडम ले लिया आपने? Parmeshwari madam is there. यस सर. जस्ट ज्वाइन हुई है मैम. अच्छा, जज यस सर. अटेंडेंस हुआ क्या लेने का है? ले रही हूँ. हाँ, ले लो ले लो. अच्छा, बिफोर यू टेक द अटेंडेंस, आफ्टर ड्यूरिंग टेकिंग द अटेंडेंस जिसका कुछ अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन स्टे, अदरवाइज आफ्टर गिविंग योर अटेंडेंस यू कैन लीव. ओके, थैंक यू. Yes, Parmeshwari ma'am, you can take the attendance. So I have taken the attendance. Acha, you have taken? Okay. Okay, if you have any questions, you can stay. Others can